एक कहावत कही जाती है कि युद्ध का अंत नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और हमास की जंग में अब तक 34,844 फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जबकि 78,404 गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें सैकड़ों निर्दोष महिलाएं, हजारों मासूम बच्चे शामिल हैं। युद्ध के अपने नियम होते हैं कि बच्चे नहीं मारे जाएंगे, पर इजराइल इस कानून को नहीं मान रहा है। राफा और गजा पट्टी से आने वाली तस्वीरें तो कम से कम यही ही कह रही हैं। यकीनन इजराइल और हमास की जंग में कत्ल होती मानवता दुनिया को कयामत के आखिरी पायदान तक ले जाने के लिए काफ़ी है। इंसानियत की तरफदार दुनिया की तमाम संस्थाएं बार बार इजराइल और हमास को चेतावित कर रही हैं कि इस युद्ध में मानवता का कत्ल हो रहा है, लेकिन इन दोनों दुश्मनों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। पावरफुल होने की वजह से नुकसान इजराइल ज्यादा कर रहा है। मासूम बच्चों के मारे जाने से, लाखों लोगों के बेघर हो जाने से, प्यास से लकलकाते, भूख से पागल, एक एक रोटी को तलाशते लोगों से आज हमें शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सोचिए कि आखिर हम कहां आकर के खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि इजराइल को इन सब बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बदले की भावना उसकी आंखों में मानो खून बनकर छलक रही है। इजराइल को अपने बदले के सिवाय इस वक्त और कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसके एक बम से कितने मासूम बच्चे मौत के घाट उतर जा रहे हैं, उसको इस बात से शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इस बात को याद रखिए कि निर्दोष बच्चों का मारा जाना, उनका चीखना बिलखना इस दुनिया के खात्मे के लिए काफी है। Now, let me come to something much more recent. You all know that there's right now, a very difficult situation going on in the Middle East, in West Asia. That after the terrorist attack on Israel in October, after that the Israelis went into Gaza, a lot of people have got killed. Even now that fighting is going on. And in many ways the problem has escalated. So you have a very tense, very complicated situation involving Israel, involving the Palestinians, involving many of the Arab countries, the Gulf monarchies, involving Iran. There was an exchange of, the Iranians and the Israelis a few days ago fired on each other. Now, look at how a Vishwabandhu would approach this situation. We were very clear when Israel was, on October 7th, when the terrorists attacked Israel, that this was terrorism. We took a clear stance on it. When Israel responded, we also took a position that, look, whenever any military response takes place, it is very important that civilian lives are protected. And if you are displacing civilians, so they are no longer in the homes, you have to give some kind of humanitarian corridor out there. We also have when Israel and Iran started firing at each other, I personally called up the two foreign ministers there on the Prime Minister's instructions and basically told them, saying, look, the whole region is worried. We urge you, don't go forward on this. And today, actually, while we are doing all of this, and by the way, in terms of the Middle East, we support eventually a homeland for the Palestinians, and we are very public about that as well. We also today make a practical contribution. About 20 of our ships are actually in the Red Sea, making sure that these attacks on shipping which increases the cost of trade, that those attacks are limited. So I give you again, just think how many parties, Israelis, Palestinians, the Arab countries out there, the Iranians, and yet we are able to actually engage all of them, talk to all of them, get them to, in many cases, understand our positions, get them sometimes carry messages from one to the other, which we often do, by the way, in this very conflict type of situations. So
Here again you see that ability to talk and engage multiple people, to do it in a way, I tell people, if I were to give to a common person on the street, saying, give me Indian diplomacy in 4 words, I would say actually it is Sabka Saath, Sabka Vikas. That ability to carry everybody with you. And for this, you have to build a track record. They have to trust you. Now I've spoken about the Middle East. इधर जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब से अभी तक इजरायली नागरिकों के मरने की संख्या 1139 है। हाँ, लेकिन हमास ने अभी भी दर्जनों इजरायली नागरिकों को बंदी बनाकर रखा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को यही बंदी वाली बात शायद खाए जा रही है, जिस वजह से वो आम फिलिस्तीनी नागरिक और हमास के लड़ाकों में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। अब तो हालत ये है कि इजराइल हमास को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इजराइल ने कब्जे के मकसद से राफा और गजा पट्टी के बाकी हिस्सों पर भी अभी भी बमबारी जारी रखी है। इन दोनों एरियो में अभी भी कैंप बनाकर 200 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी आबादी रह रही है, लेकिन अब उन सबको अपनी मौत का भयावह डर सता रहा है, क्योंकि मिस्र के साथ सीमा पर महत्वपूर्ण राफा क्रॉसिंग पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, जिससे ये सारे फिलिस्तीनी यहीं फंस कर रह गए हैं। इस नए हमले के बाद से एक डर ये भी पैदा हो गया है कि गजा में मानवीय सहायता पहले से ही ना के बराबर पहुंच पा रही थी, जो अब बिल्कुल भी नहीं पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि जॉर्डन का ये आरोप है कि इजरायली नागरिकों ने उत्तरी गजा में बीट हनून क्रॉसिंग, ये इजरायलियों के लिए इरेज के रूप में जाना जाता है, पर एक सहायता काफिले पर हमला किया है, जिससे इजरायली प्रदर्शनकारियों द्वारा मानवीय सहायता को गजा में प्रवेश करने से रोकने की प्रवृत्ति भी जारी रही है। इसलिए इस नए हमले के बाद अपर्याप्त प्रवाह और कम हो सकता है। सहायता अधिकारियों ने रफा में इजरायली घुसपैठ के खिलाफ चेतावनी देना जारी भी रखा है। दोनों तरफ से मरते कटते लोगों को देखकर दुनिया के अमन पसंद लोग भयभीत हैं, वो युद्ध विराम चाह रहे हैं। तो वहीं युद्ध विराम को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हमास को युद्ध विराम का जो प्रस्ताव पसंद आया था वो इजरायली प्रधानमंत्री को स्वीकार नहीं है, इसलिए युद्ध विराम वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए इजराइल के अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल काहिरा जा पहुंचा है। युद्ध विराम को लेकर हमास के एक प्रवक्ता ने कहा है कि गेंद अब नेतन्याहू के पाले में है और युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका को इजराइल पर अधिक दबाव डालना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चेतावनी दी है कि इजरायली सेना द्वारा रफा और पूर्ण पैमाने पर आक्रमण एक रणनीतिक गलती, एक राजनीतिक आपदा और एक मानवीय दुस्वप्न होगा। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है, हर दिन जब इजरायली अधिकारी जीवन रक्षक सहायता को रोकते हैं तो अधिक फिलिस्तीनियों के मरने का खतरा होता है। कुल मिलाकर आपसे यही कहना चाहते हैं कि युद्ध का वाकई में कोई अंत नहीं होता है। इजराइल और हमास की अत्यंत दुखदायी जंग का उदाहरण आज हमारे सामने है, दुनिया के सामने है। पहले के युद्धों को, अत्यंत भयावह जंगों को अनुभव कर कवि को जर्मन कवि बर्तोल्त बिरखत ने लिखा था, युद्ध जो आ रहा है पहला युद्ध नहीं है, इससे पहले भी युद्ध हुए थे। पिछला युद्ध जब खत्म हुआ तब कुछ विजेता बने और कुछ विजित। विजितों के बीच आम आदमी भूखों मरा, विजेताओं के बीच भी वह मरा भूखा ही। मेरा नाम खुशनूर है, आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।